अल्ताफ आलम जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. So I am 2015 pass out from RGPU University, and my branch is electronics and communication. After that, I am working in electrical domain ओके as an electrical panel design engineer. I have ओके 7 years of experience in electrical panel designing ओके and testing and commissioning. My hometown is Bokaro in Jharkhand. ओके। नेक्स्ट जितेंद्र पांडे। हेलो जितेंद्र पांडे। Hello, good afternoon. My name is Jitendra Kumar Pandey. I am currently working in Reliance Infocom Limited, Bihar, and my current profile is at network lead work कर रहा हूँ. I am जी आप belonging हिंदी में बात from. कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप कंफर्टेबल, आप जिसमें आप हिंदी में बात कीजिए। हमारा ये मैं कोर्स स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम एज ए कंफर्टेबल जोन में करें, ठीक है? ऐसा कुछ हाँ नहीं हाँ है। बिल्कुल. इंग्लिश आपको उतनी ही आनी चाहिए जितनी सामने वाले को आप समझा सके। तो ये जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि हम अमेरिकन नहीं है, ठीक है? तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay, thanks. So I am belonging from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have over 14-year experience in telecommunication. 14 years। Yes, Okay. thank you. क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? BTech from IT in Okay. 2008. Okay. Next, धीरज। Hello, good afternoon. Good afternoon. Myself Dheeraj Raut, and I am from Ahmednagar, Maharashtra. I have completed my BE from ENTC and currently working as a fiber engineer. Okay. Yeah, that's it. क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? BE ENTC. Okay, Bachelor of Engineering. Okay. Now next, Rakesh Singh. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. I'm Rakesh Singh from Bihar. I have completed BTech in Electronics and Communication in 2012 batch. And after that, I have 3-year work experience in telecom and another 3-year in oil and chemical plant. But sir, from last 3 to 4 years not working anywhere. Okay. Preparing for a government job. But right now searching job. So I want start any courses. Okay. Yes. So yeah. Okay. Next, Vijay Yadav. Hello, good afternoon. I am Vijay Kumar Yadav. I am basically from Bihar. I am working in Bay Data Communication Solution in Assam as a network engineer. Okay. Last 4 years. My qualification is Bachelor of Engineering in Computer Science. Okay. Next, Roshan Pandey. Hello, Roshan. Hello. Yeah, Roshan. Hello. Yeah, Roshan. Hi, sir. Hi. I am How are Roshan you? Kumar Pandey. Fine, sir. I am Roshan Kumar Pandey. I am basically from Bihar. I was completed my BTech in 2015. After that, I was joined as a RFDT engineer. I worked there approx 2 years. After that, I joined Vivo India Private Limited, and I also worked there as 2 years in research and development department. Now onwards, I am looking some courses which enhance my skills and so that I will get job in IT sector. Okay. Now next, Kumar. Kumar, can you hear me?
कुंवर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो कुंवर, कुंवर मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो कोई सुनिए, यही तो आपको अपने, हाँ बताइए। धीरज आपकी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, सो प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हेलो, चलो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं एज IT में 12+ ईयर एक्सपीरियंस है। राइट नाउ वर्किंग एट ए MNC कंपनी। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस कंपनी का नाम। सो एज ए मैं डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पे वर्क करता हूँ। 12+ ईयर एक्सपीरियंस है मुझे एज ए क्लाउड AWS प्लस डेवऑप्स। कितने लोगों को इसमें पता है क्लाउड क्या है एंड डेवऑप्स क्या है? एनी आइडिया? इफ एनीबॉडी? राकेश? No, sir. I actually have only listened, sir, about cloud. Okay, not an issue. Anybody? If you have any idea, so please. So only little bit knowledge about cloud, but not any knowledge about DevOps. Okay, not an issue. मेहताब क्या आइडिया आपको बताइए, क्लाउड के बारे में क्या जानते हैं आप? We upload it or Google Drive or the company database, all the things and everything is connected to the internet on a cloud that is on the server, and little bit knowledge about the cloud. Okay, good. कोई इशू नहीं है, आपको लिटिल बिट आइडिया है, बहुत अच्छा, सुन के अच्छा लगा। आपको मैं बताऊं, सो क्लाउड एक तरह की ऑन डिमांड सर्विसेज है। क्लाउड क्यों आया, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके अगर क्लाउड नहीं था तो उसके पहले कंपनी क्या यूज करती थी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? Yes, sir. ओके, सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, विजुअल है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Is it visual? ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका फ्यूचर क्या है, आगे ग्रोथ क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS क्लाउड। कोई बताएगा AWS क्या होता है? So AWS stand for Amazon Web Service. Actually, this service is given by Amazon. The cloud which is deployed is given by Amazon. Okay, good, very good. This is a public cloud, right? Yes, so this is public, anyone can use it. Right. क्लाउड का मतलब क्या होता है आपको ये मालूम है? क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है बादल। जो हमारे बादल हैं वो बहुत सारी चीजों से मिलके बने होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी टाइप से। तो हमें नीड क्या होती है कि हमें बारिश हो, राइट? तो यहाँ पे क्लाउड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं लाइक डेटा, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी, डेटाबेस, जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं एक जगह हमारी स्टोर की हुई है। हमें जितनी नीड है उसकी उतनी, जितनी नीड है उतनी हम यूज कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमें एक सर्विस का यूज करना है, ठीक है, अगर आप जैसे ये सोचो, फ्लिपकार्ट जानते हैं आप? आई होप आप सभी जानते होंगे। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बिग बिलियन डे चलता है, राइट? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आ रही। डिफरेंट। ओके, सर आपका स्क्रीन नहीं दिखा आपका? क्या
स्क्रीन नहीं दिखता आपका स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, विजुअल तो है। डिस्कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लो, आपका एंड पे कोई इशू होगा, बाकी को दिख रहा है। जस्ट वेट, मैं सो रहा हूं। अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके। सो मैं ये बता रहा था फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है। तो जब हमारी सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारा विप्रो, हमारा एचसीएल, हमारा इन्फोसिस, जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो इससे पहले हम एक सर्वर रूम बनाते थे। आई होप सबको पता होगा। उस सर्वर रूम में हम अपने राउटर, अपने हब, अपने स्विचेज ये सब रखते थे। तो उनकी सेफ्टी के लिए, जैसे हम मान के चलो कि नाइट ड्यूटी के लिए एम्प्लॉय रखते थे, अपने उसको देख रेख के लिए बहुत सारे एसी रखते थे कि भाई सर्वर रूम हमारा ठंडा है। आई होप आपको अभी भी बहुत सारे ऐसी कंपनी के सर्वर रूम दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि हमें बहुत लॉस होता था कंपनियों को। अब जैसे क्या है कि मैं अब वही एग्जांपल दे रहा था फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि बिग बिलियन डे चलता है 3 डे के लिए, ठीक है, मालूम है ना सबको ये? हेलो, यस, ऑफर के साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको पता? हाँ, तो वो मैं ऑफर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस 3 दिन में आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 या 3 CR लोग कनेक्ट होते हैं फ्लिपकार्ट से। अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग उसको देखते होंगे, सर्च करते होंगे, ठीक है। मोबाइल हुआ, कपड़े हुए, जो भी हो, एनीथिंग एल्स, तो वो सर्च करते हैं। लेकिन इस 3 दिन के ऑफर में बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट को चेक करते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर उनके पास ऑन प्रीमिसेस सर्वर होती, ठीक है, ऑन प्रीमिसेस सर्वर होता, तो क्या होता? अगर मान के चलो 2.5 CR लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता कि हमें सर्वर, अगर मान के चलो हमारे पास अभी करंट में जो सर्वर अवेलेबल है वो ओनली फॉर 50 LPA के लिए, ठीक है, 50 लाख के लिए। उसके बाद क्या होगा हमारा कि जब हमारे जैसे यूजर्स ज्यादा जैसे लोड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमें सर्वर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ऑन प्रीमिसेस सर्वर को सेटअप करने के लिए एटलीस्ट 30 डेज चाहिए होता है। इसको सेटअप करने के लिए 30 डेज चाहिए होता है। अब ये बताओ, वो 3 दिन के लिए सेल के लिए अपना 30 डेज इन्वेस्ट करे, प्लस क्या होता है फिर 3 दिन बाद ऑटोमेटिक उसके सर्वर पे 10 लाख लोग आते हैं, आपके 20 लाख लोग आते हैं, ठीक है, 30 हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। एक बात बताओ, वो क्यों आ गए क्लाउड पे? रीजन बस यही है कि हमें ये जो क्लाउड है, क्लाउड जो सर्विसेज है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम, अगर हमारा यूजर इंक्रीज होता है 3 दिन के लिए, तो आपको भी पता है कि AWS क्लाउड सर्विसेज, आई होप पता होगा आपको कि ये ऑन डिमांड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। भाई हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं तो हमें दूसरा सर्वर दे दो, स्टोरेज दे दो। तो इसके हमारे बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि हम क्लाउड, अब सारी कंपनियां, वो चाहे टेलीकॉम हो, वो चाहे आपकी कॉर्पोरेट की जो भी सेल्स मार्केटिंग वाली हो, मतलब कि हर बंदा चाहता है कि हम अपना डेटा सेंटर खोल के क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करें, हम क्यों ना क्लाउड पे मूव कर जाए। और प्लस इस पे सिक्योर भी है। कोई बता सकता है क्लाउड कितने टाइप के होते हैं? आई मीन कि कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो क्लाउड प्रोवाइड कराती हैं? जैसे एक तो हो गया AWS,
एज्योर हो गया, जीसीपी हो गया। एक हो गया एज्योर और दूसरा गूगल क्लाउड जीसीपी। आपको पता है अलीबाबा भी क्लाउड प्रोवाइड कराता है। गूगल Yes, क्लाउड। Alibaba is also providing. सॉरी क्या बोल रहे हो Alibaba is also providing. हाँ, अलीबाबा ये चाइनीज कंपनी है, तो ये अभी गूगल क्लाउड। सॉरी हेलो जी, गूगल क्लाउड। हाँ गूगल क्लाउड IBM भी क्लाउड प्रोवाइड करती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलीबाबा हो गया, ठीक है। ये जो है अमेजन प्रोवाइड कराते हैं, ये क्यों है आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है, ये जो है गूगल प्रोवाइड कराते हैं, ये जो है आपका अलीबाबा जैकमा, नाम सुना होगा आपने, ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायर्ड पर्सन है। ये इसकी आप लोगों ने इसकी विकिपीडिया देखी होगी, आई होप सो, ठीक है। हमें जो फोकस करना है अमेजन क्लाउड पे करना है, ठीक है। रीजन इसका ये है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज डेली बेस पे अपडेट होती हैं, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी आप नौकरी प्रोफाइल पे सर्च करें तो डेली एटलीस्ट आपको 2000 जॉब्स ओपनिंग मिलेगी। और अगर आपने गूगल अमेजन क्लाउड के बारे में नॉलेज है तो आपका जो मिनिमम पैकेज होगा वो होगा 5 LPA मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी कोई डाउट हो तो पूछिए, कुछ पूछना हो, उसके बाद में इसके कंपोनेंट वगैरह क्या क्या कंटेंट वगैरह बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आपको कुछ और डाउट हो तो आप पूछिए पहले, देन नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। बताइए। अमेजन क्लाउड पढ़ने के लिए लिनक्स की कितनी नॉलेज होनी पड़ेगी? बेसिक, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए, मैं उसी के बारे में अभी डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज में वही चलने वाला हूँ, ठीक है। हमें इसके लिए क्या होना चाहिए कि AWS क्लाउड, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक OS प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, या तो वो विंडो हो या तो वो लाइनेक्स हो, ठीक है। लेकिन AWS क्या बोलता है कि आप लाइनेक्स को प्रीफर करो। इसमें क्या है, रीजन, ये जो OS है इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही फिट बैठता है। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो हमारे विंडो के लिए, स्पेशली विंडो के लिए बना हुआ है, ठीक है। सो AWS क्या बोलता है, इसके भी आप चाहो तो विंडो पे वर्क कर सकते हो, लेकिन ये क्या प्रीफर करता है कि आप लाइनेक्स प्रीफर कीजिए, क्योंकि जो इसकी लाइनेक्स के साथ कंपेटिबिलिटी है ये बहुत ही सस्ती, इजी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब है, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन राकेश? हेलो, हाँ सर। हाँ, आप कुछ और पूछना चाहते हैं पूछिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नहीं सर, क्लियर। महताब? नो सर। ओके, देखो मैं आप लोगों से एक बहुत ही क्लियर बात करना चाहता हूँ। हमारा बस इतनी सी है कि हम हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है, इसलिए ये पूछ के बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना जो शर्म के मारे बोल नहीं पाते हैं कि यार ऐसा तो नहीं, मेरी इंग्लिश खराब है, ऐसा तो नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। सो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी कंफर्ट हो, और यहाँ पे हम आपको रियल टाइम सिनारियो बताएंगे,
कि रियल टाइम इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, हमें कैसे जॉब लेना है। अगर हम 2012 बैच के पास आउट है सर, हमें जॉब कैसी मिलेगी, जो हमारा प्रीवियस अदर इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस है उसको कैसे हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे। अगर किसी की सैलरी, अब जैसे पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा है, किसी बंदे ने बताया कि वो केमिस्ट में काम करता था, राइट, क्या नाम है उसका, अदर इंडस्ट्री में काम करता था, उसको ये सर क्लाउड पे कैसे मूव होगा, उसकी सैलरी कैसे इंक्रीज होगी। सो आज के दिन हम डेमो में बस यही करने वाले हैं, आपका क्या फ्यूचर है, आगे आप क्या करेंगे, इस कोर्स को कैसे अपने आप में इनबिल्ट करेंगे, और ये क्या सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं, वो AWS क्लाउड है, ये मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है क्लाउड पे मूव कर रही हैं, बिकॉज स्पेस की कमी प्लस फंडिंग की कमी। फंडिंग इन द सेंस क्या है, हर कंपनी चाहती है कि मेरा जो पैसा है वो कम लगे और सस्ते में मुझे अच्छा मिले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा वो ये चाहती है कि हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस हो और प्लस सिक्योर हो। अब एक बात बताओ, अगर आपने किसी रूम में डेटा सेंटर बनाया, सपोज बाई चांस, खुदा ना खास्ता अगर कुछ आग लग गई, कुछ भी हो गया, चलो ठीक है, ये बात की बात के बैकअप ले लोगे, अगर वो जल गया तो कंपनी को कितना नुकसान होगा, बहुत होगा ना। लेकिन AWS हमारी बहुत सारी डेटा सेंटर है इसके, और सबसे पहली बात ये है, ये आपके डेटा को कॉपी करके रखती है अलग अलग जोन में। ठीक है, अभी हम कंटेंट बता रहे हैं आपको, ये देखिए, ये हमारे AWS के कंटेंट हैं। ठीक है, EC2, आपने इसका नाम सुना होगा, नाम सुना है किसी ने EC2 का? EC2 I know. Okay. In Google it's called Google instance. Sorry? In Google it's called compute instance. हाँ, ये अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। What's your good name? महताब। अमित। What's that? नहीं, आपका नाम क्या है? Sir, my name is Sorry? मेहताब आलम। ओके, मेहताब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं AWS की, उसके बाद हम पढ़ाएंगे एज्योर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और मेरे पास अभी AWS एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है, एज्योर VM 005 का सर्टिफिकेशन है, 044 का सर्टिफिकेशन है, और GCP का सर्टिफिकेशन है। बट मैं ये चाहता हूं हम AWS से करें। ठीक है, तो AWS पे ये है कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे, इसके जितने भी कंपोनेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव ऑन द एज्योर, देन आफ्टर दैट मूव ऑन द GCP क्लाउड। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारे ये कंपोनेंट है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये क्या है, ये सर्वर है। आप एज्योर में इसको क्या बोलते हो, VM बोलते हो, GCP में क्या बोलते हो, कंप्यूट इंस्टेंस, कंप्यूट इंस्टेंस बोलते हो। ठीक है, सो काम सेम है, बस नेमिंग कन्वर्जन डिफरेंट है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की ये नेमिंग का सेम है। अगर आप नेक्स्ट मोमेंट में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप फैमिलियर हैं, इतना आपको चाहिए, आप फैमिलियर होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे जो S3 है ये स्टोरेज है, अगर आप इसको एज्योर में देखेंगे तो ये स्टोरेज के नाम से आएगा। ठीक है, तो नेमिंग कन्वर्जन डिफरेंट है बट वर्क सेम है, फ्लेक्सिबिलिटी सेम है, रिलायबिलिटी सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है।
तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कोर्स कंटेंट हैं, हम पढ़ेंगे EC2, VPC, S3, राउट 53, RDS, लैम्डा, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CDN, IAM एंड मॉनिटरिंग टूल, क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल एंड CFT। ठीक है, ये हमारे हैं AWS क्लाउड के कंपोनेंट। अब मैं एक एक टॉपिक पे बस एज ए ब्रीफ दूंगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से हम आपको पूरी डिलीवरी देंगे एक एक कंपोनेंट के, उसके सब कंपोनेंट क्या क्या हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। आज मैं इसका फ्यूचर बताने वाला हूँ और आपका फ्यूचर बताने वाला हूँ। ये पढ़ के आप क्या करेंगे, कैसे होगा, इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं EC2 से। EC2 यहाँ पे एक तरह का ये सर्वर होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। नेक्स्ट हमारा क्या है VPC। ये क्या है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आपको पता है जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं हम एक वर्चुअली, अब क्योंकि वहां पे तो मल्टीपल कंपनी क्रिएट करती हैं EC2 VPC, तो ये हमें क्या करता है, एक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके दे देता है कि भाई एक जोन बना लो, आप अपने ऑफिस का स्टोरेज, नेटवर्क, राउट, जो भी आपको कुछ भी जिसकी भी जरूरत पड़े उसको एक स्टोरेज की तरह आप काम करो, एक कंपनी की तरह काम करो। अब जैसे मान के चलो इन्फोसिस, उसका एक अलग वर्चुअल क्लाउड होगा, IBM का अलग होगा, HCL का अलग होगा, इन्फोसिस, TCS का अलग होगा। या क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहा था क्या कोई? हेलो, हेलो, नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो कंपोनेंट है वो S3, इसको बोलते हैं हम स्टोरेज, सिंपल सर्विस स्टोरेज हुआ। ठीक है, ये होता है राउट 53। डोमेन वगैरह के बारे में आप लोगों को पता है डोमेन क्या होता है? सर .com, .co, .in, .net यही सब ना? हाँ, ये डोमेन होता है। आपको पता है ये कौन प्रोवाइड कराता है? सर बहुत सारे कंपनी है, GoDaddy इसी टाइप का बहुत सारा है जो एक सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड करा देता है। देखिए वो क्या करता है कि हमारी उसमें क्या होता है कि अब जैसे मान के चलिए हमारी ये जो कंपनी है RF.in, ठीक है, तो ये जो .in है ना, हमने परचेज किया है, उसको क्या किया है हमने क्लाउड पे मैप कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान के चलो कि अगर आप सपोज आउट ऑफ इंडिया हो, वहां से जब एक्सेस करोगे, ठीक है, तो हमारे डोमेन पे कि हमारे सर्विस को, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है, क्या क्या कंटेंट है। तो ये एज ए डोमेन इन द सेंस कि जैसे facebook.com हुआ, flipkart.com हुआ, ये सब डोमेन है। ठीक है, तो इसमें हम डोमेन जैसे राउट 53, ये हमारे एक टॉपिक है, एक हमारे कंपोनेंट है AWS के। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं था क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारे सब कंपोनेंट आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा आता है RDS। RDS का मतलब कोई बताएगा क्या जानता है RDS का मतलब? देखो कुछ भी जानते हो नहीं जानते हो कोई इशू नहीं है, आप खुल के बताओ, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई किसी भी बच्चे को हेजिटेशन ना हो और वो क्लियर समझे। ठीक है, एक एक चीज क्लियर समझे, क्योंकि यार मेरा ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरा बस एक ही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जॉब ले, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बस पढ़ाए, टाइम पास किए, चले गए। तो अपना बस कंसर्न इतना है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब हो। अभी आपने ग्रुप में देखा होगा 5 बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस है,
और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस्ड हूँ, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही होता है, कम बच्चे पढ़ाना लेकिन प्लेसमेंट देना, ठीक है। तो बिल्कुल सोचना नहीं है और ना ही हेजिटेट होना है। अगर कुछ नहीं आता बहुत अच्छी बात है, कुछ आता है और भी अच्छी बात है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखो यार, जब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपने आप को जीरो मान के चलो, बिकॉज अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे या बिल्कुल शर्मीले बन के रहोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो ये सोचो मुझे कुछ नहीं आता, और अगर आता है हाँ वो बताओ कि सर मुझे ये आता है, मुझे ये जाना ये कैसे होता है, तो फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना है, ठीक है, ओके। नहीं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लैम्डा। लैम्डा एक सर्वरलेस होता है, ये हमारा टॉपिक है। दूसरा हमारा लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर एक तरह से मैं ये बोलना चाहूंगा, लोड बैलेंसर के का मतलब ये होता है कि मान के चलो, अभी मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एक बताया था, एज एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर हमारे पास सडन कस्टमर, अगर हमारे यूजर बढ़ जा रहे हैं, 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अब अगर मान के चलो हमारी जो .in करके हमारी जो वेबसाइट है इस इंस्टीट्यूट की, अगर मान के चलो कि आप यूएस में हो, इसको एक्सेस करना चाहते हो हमारे इंस्टीट्यूट को, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं। अब हमें सर्वर को मॉनिटर भी तो करना है कि भाई हमारा कौन सा सर्वर हेल्थलेस है, हेल्थफुल है, किसकी जो हेल्थ वो सही है। पता चले कोई सर्वर डाउन हो गया, हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कभी कभी हमारा फेसबुक भी डाउन हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। ये वो किस रीजन से होता है? इन्हीं सब रीजन से होता है। उसमें बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लगे होते हैं, लॉग्स रोटेट होती है, लॉग्स वगैरह देखते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये सब देखते हैं, ठीक है। और ये जो CFT टेम्पलेट है, इसको बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CFT। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटेड। इन सब चीजों को अगर मुझे सडन क्रिएट करना हो एक बार में, तो हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो ये बोलती हैं कि भाई हमें, अच्छा आपने GUI और CLI का नाम सुना है राकेश? हाँ, यस आई नो। क्या होता है? GUI graphical user interface and CLI command prompt. Command line interface. Okay. Graphical user interface in the sense? Yeah, but generally means we are using in the Google Cloud, means where we can directly create a Google instance, means a compute instance using GUI method. But there is no any command required in that. We can also do the same on SSH as well as on GCP, Google Cloud Computing, means on Linux. देखिए, ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। GUI का मतलब ये होता है कि हम स्क्रैच मोड से टिक 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 किए, हमारा क्रिएट हो गया। और CLI मतलब क्या होता है कि हमने कमांड लिखा और एंटर दबा दिया, हमारे सारे कंपोनेंट, अगर हमें EC2 क्रिएट करना है EC2 क्रिएट हो जाएगा, अगर हमें IAM क्रिएट करना है IAM क्रिएट हो जाएगा। CLI मतलब कि एक कमांड के थ्रू चलता है, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो हम स्क्रैच मोड से क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट? हेलो राकेश, महताब, विजय, कोई डाउट बताओ, पूछो। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। CLI में और GLI में, GCL में। कुणाल, कुणाल, वो लामड़ा में थोड़ा डाउट है मेरा। लामड़ा में थोड़ा डाउट है। लामड़ा कॉन्सेप्ट क्या है उसमें थोड़ा। अभी मैं आपको लैम्डा का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी लैम्डा
बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लैम्डा में क्या होता है कि जब भी डेवलपर हमारा कोड लिखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हमारा एक तरह से वो देखो तो वो ट्रिगरिंग का काम करता है। जब भी डेवलपर जानते हैं ना किसको बोलते हैं, जो कोड लिखता है वो डेवलपर होता है। वो क्या करता है, मेरा सर्वर पे कोड रख देता है, तो हम एक सेटअप तैयार करते हैं कि भाई डेली बेसिस, डेली तो हम उसको चेक करेंगे नहीं, तो वहां पे ट्रिगरिंग का ऑप्शन लगाते हैं। तो लैम्डा क्या करता है कि जैसे हमारा डेवलपर कोड को लिखता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमारा काम कैसे है, ये मान के चलो हमारा डेवलपर है, ये मान के चलो हमारा S3 बकेट है। S3 बकेट समझ रहे हो आप, स्टोरेज, हाँ, ठीक है। और ये हमारी API लगी हुई है, ये हमारी API है। API आपको पता है किससे होता है, माइक्रो सर्विसेज होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड। मेरी स्क्रीन विजुअल है राकेश, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अब देखिए, ये जो लॉगिन है ना, लॉगिन दिख रहा है, ये हमारी माइक्रो सर्विस है। ये माई प्रोफाइल, फ्लिपकार्ट, ऑर्डर, व्हाइट लिस्ट, रिवर्स, गिफ्ट एंड कार्ड, ये सब हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं, ठीक है। ये कॉल कैसे करता है, अगर मैंने इस पे क्लिक किया बिकम ए सेलर पे, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये डेवलपर ने कॉल किया, इसको कोड को इसने रख दिया, इसमें स्टोरेज में हमारे पड़े हुए हैं। ये कॉल करता है माइक्रो सर्विसेज एपीआई के थ्रू। लैम्डा क्या करता है कि हमारा ट्रिगर करता है, और योर एप्लीकेशन इज विजुअल फॉर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी हमारा ये लॉगिन पेज आ गया सपोज, बिकॉज इसमें मैं लॉगिन नहीं हूं इसलिए इसने ओपन नहीं करने दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या करता है, लैम्डा फंक्शन एज ए ट्रिगर करता है, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, क्यों, बिकॉज अगर आपको EC2 समझ में नहीं आएगा, S3 समझ में नहीं आएगा, तो आप लैम्डा के बारे में नहीं समझ सकते, ठीक है। ओके, तो हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर हम आपको ये बोले RDS क्या है, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलूं लोड बैलेंसर क्या है, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम एक फेज में चलेंगे, एक स्टेप में चलेंगे। ये सारी सर्विसेज एक स्टेप में है। अगर आप ये सोचो कि हम EC2 के बिना VPC क्रिएट करते तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज अगर हमारे पास सर्वर सर्विस नहीं होगी तो हम इसकी यूज ही क्या करेंगे। आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसका यूज करें तो ये किस लिए यूज करेंगे, अगर हम इसका यूज करें तो सबका एक तरह से ये मानो कि डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट्स है एक दूसरे पे। बिकॉज EC2 क्रिएट करेंगे तब हम VPC यूज करेंगे, उसके बाद S3 क्यों यूज करेंगे भाई, जब हमारे पास डेटा होगा तो हम इसको स्टोर करने के लिए करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा AWS के कंटेंट हो गए, ठीक है। अब आपको भी पता है मार्केट में अगर आप केवल AWS पढ़ोगे ना तो जॉब नहीं लगने वाली। देखो लग जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ एडिशनल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेवऑप्स। डेवऑप्स का मतलब जानता है कोई? हेलो हेलो राकेश, राकेश डेवलपर सर आई थिंक राहुल, परतोन, मुरली, मेहताब, कुंवर, कुणाल, जितेंद्र, धीरज, यार आप लोग जब बोलोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ आपको बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक है, आइडिया नहीं है सर। क्या हुआ? नहीं सर पता अभी अभी तो क्लास शुरू ही हुआ तो कैसे पता होगा हम लोगों को? नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप पूछोगे ना तभी पता चलेगा कि कैसे, मतलब कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर मैं बोलता था सेशन को मोर इंटरेक्टिव बनाओ, कम्युनिकेशन बोथ वे में होना चाहिए, पता हो या नहीं पता हो इट्स डजंट मैटर। केवल इंस्ट्रक्टर अगर बोलता रहेगा तो वो फिर मोटिवेट नहीं होगा। सो यू कैन कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बिल्कुल नहीं आता हो तो आप पूछो ना कि सर ये क्यों आया। अभी मैंने आपको क्लाउड के बारे में बताया ना, ये क्यों आया। तो मेरा कहना ये है, किसी चीज के बारे में जानने से पहले मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, आपने ये क्लास क्यों ज्वाइन की? आप मुझे बता सकते हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या, आप कहाँ से मोटिवेट हुए कि मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मैं आगे बढ़ूंगा? आखिर में कैसे जाना, कहाँ से जाना, कुछ बताएंगे आप? क्या सोच के इस क्लास को ज्वाइन किए हैं? कुछ तो मोटो होगा ना आपका। ये सर क्या मोटो है बताइए? वो रिलेटिव है सर, उन्होंने मतलब। अरे खुल के बोलो राकेश, कोई इशू नहीं है, खुल के बोलो। देखो बोला सर राकेश मेरी बात सुनो, कोई भी बंदा ना पेट से सीख के नहीं आ। जी सर। तो मैंने भी बहुत कुछ मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल से सीखा है, बिल्कुल इनिशियल लेवल से। अब मुझे पूछने की बहुत आदत है, मुझे क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार नहीं 10 बार पूछो, एटलीस्ट पूछोगे तो मैं भी मोटिवेट हूँगा कि यार चलो जिसको पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से वो इंटरेस्टेड है, वरना कुछ पूछोगे नहीं। अब जैसे आपने लैम्डा के बारे में पूछा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लैम्डा के बारे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब आप अगर एक एक टॉपिक के बारे में पूछो, देखो यार एक बात बताओ यार, जब तक पूछोगे नहीं ना तब तक आप सीखोगे नहीं, क्योंकि पूछना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। और जितना पूछोगे, जितना उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आएगा। तो सबसे पहली बात है समझना। देखो आप अगर हैदराबाद बेंगलोर में जाओगे ना, ठीक है, वहां पे 500 लड़कों का क्लास चलता है। वहां पे अगर आप पूछना भी चाहोगे तो नहीं पूछ पाओगे, ठीक है। वहां पे बस टीचर आता है, इंग्लिश बोलेगा ना, इंग्लिश तो आपके पल्ले ना पड़ेगी। रीजन क्या है? क्योंकि साउथ वाले कुछ इंग्लिश अलग ही वे में बोलते हैं, सर सर, आपको पता है ऐसे बोलते हैं। सर उनका एक्सेंट ऐसा रहता है कि समझ में ही नहीं आता है। हाँ, या तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। एक बात बताओ, अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं हिंदी में अगर कोई बोलता है लिखने को तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, और हिंदी में बात करने में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको इंग्लिश में पूछने में डर लगता है कि अरे यार ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ,
ऐसा तो नहीं मैं कुछ मतलब कि जो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, मतलब ये सोचने लगते हैं परफेक्ट नहीं होगा तो सर कहीं हंसे ना, चाहे मैं ग्रुप में ऐड हूँ तो वो ऐसा ना हो बंदा हंसे चाहे मजाक बनाए। तो यार इसीलिए मैं हिंदी में ही बोलना शुरू किया। यार आप लोग पूछो, ठीक है, आप लोग समझो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता एक बार 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट पूछो सर क्यों आया। अभी ये बताओ मेरे को डेवऑप्स क्यों आया। अब चलो आप लोग नहीं पूछोगे, मैं ही पूछता हूँ, बताओ डेवऑप्स क्यों आया, डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, कुछ बताएगा कोई डेवऑप्स का मतलब आता क्या होता है। नहीं सर, आप बता दीजिए। राहुल, अच्छा मैं बताऊंगा राहुल। नहीं, आप बताना सर। ओके मतलब कोई भी बताना नहीं चाहेगा डेवऑप्स का मतलब क्या होता है। सर पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया ना तो, ये लेकिन डेवलपमेंट। एक बात बताओ हेलो। मेरे बोलने, देखो मुझे ये भी पता है कि आप लोग बेसिक नॉलेज है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, लेकिन सोच बिल्कुल संकोच मत करो, ठीक है। सर इतना पता है कि This is a जो मैं आपको combination of बताता हूँ software डेवऑप्स का development मतलब and क्या होता IT है। operation. हेलो, DevOps is basically a software combination of development and IT. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। ये एक्चुअली में दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT ऑपरेशन। ओके मीन्स जो आप जो डेवलप कर रहे हैं और उसको ऑपरेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब जस्ट यू कैन से दिस इज प्रैक्टिकल वर्जन। मींस सॉफ्टवेयर में आपने डेवलप किया एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल वे, दैट इज कॉल्ड DevOps। ओके गुड। देखो ये अच्छा लगा, एटलीस्ट आपने बोला तो सही, ठीक है। देखो ब्रजेश, इतना ही आइडिया है कि सॉफ्टवेयर बना के उसको डिप्लॉय करते हैं जिससे हमारा क्लाउड काम करता है, ऐसा ही कुछ होता है सब। अच्छा कोई इशू नहीं है, ठीक है यार। देखो मेरा बस कंसर्न ये है कि आप लोग पूछो तो मुझे भी मजा आएगा, ठीक है, तो मुझे भी मजा आएगा, अरे यार बच्चे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यार देखो यहाँ पे ज्वाइन करने का मतलब ये है, ठीक है, एक बार जब पढ़ो ना, जब पहली बार इंटरव्यू दो तो वो निकल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अरे यार मैं कहाँ पढ़ाई किया कि नहीं निकला, ठीक है। तो मेरा बस एक टारगेट है कि एक बार इंटरव्यू दो वो निकल जाए, और मैं यहाँ पे आपको 5 प्रोजेक्ट कराऊंगा। आप यूट्यूब, गूगल, जितने भी हमारे टेलीग्राम वगैरह जितने भी हमारे हैं ना, इस पे आप ढूंढोगे ना, ठीक है, तो बिल्कुल 0 से लेके 100 तक नहीं मिलेगा। ना तो आपको दिल्ली में, ना तो आपको हैदराबाद में, ना तो आपको बेंगलोर में, ना ऐसा प्रोजेक्ट, ना ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि मैं आपको रियल टाइम सिनारियो पे काम कराऊंगा कि रियल में काम कैसे होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आई होप कि सब लोग इसमें जॉब वाले हैं, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब छोड़ दिया है। एक पढ़ना और एक करना बहुत डिफरेंट है, होता है ना। हमने पढ़ा कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यूअर हमारा पूछता है ना, जानते हो क्या पूछता है, यार भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने तो थ्योरी पढ़ा था, और हम तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम आई कहां से, हम सोच ही नहीं पा रहे उतना, हम उतना सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो हम कहां से बताएंगे उसके बारे में। तो मेरा इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूछो और एक एक चीज जानो। यार देखो ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, ठीक है। मेरे से पूछोगे ना तो मुझे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आई मीन कि अगर मान के चलो कुणाल ने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे नहीं आया तो मैं उस पर अपना डिबक करूंगा कि यार कुणाल ने ऐसा पूछा, मुझे उसे बताना है वो कैसे होगा, तो मैं उसे अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है।
तो मेरा कंसर्न बस इतना है कि भाई आप लोगों को अच्छी से अच्छी ज्ञान देना और प्लस आपको यू गेट ए जॉब इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं डेवऑप्स क्यों आया। स्क्रीन तो मेरी विजुअल है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ, गुड गुड गुड, ऐसे ही बोलो यार, थोड़ा तेज बोलो। सबने आई होप कि लंच तो कर ही लिया होगा यार। देखो क्या होता था पहले, ये हमारे फेज थे। यहाँ पे क्या होता था, डेवलपर जो है वो कोड लिखता था। ठीक है, उसको कोड लिखने में 2 महीने 3 महीने लग जाते थे। फिर क्या होता था, हमारी टेस्टिंग टीम के पास जाती थी। वेट। ठीक है, अब ये डेवलपर क्या करता था, इसको 2 महीने 3 महीने कोड लिखने में लग जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता था, ये जब टेस्टिंग टीम के पास जाती थी ना 2-3 महीने बाद, तो टेस्टिंग टीम जब इसको टेस्ट करती थी तो बोलती थी यार तुम्हारे में तो बग है। तो ये क्या होता था भाई, ये 2-3 महीने की जो मेहनत है ना, ये पूरी की पूरी पानी फिर जाती थी, यानी ये टेस्टिंग टीम ने पानी फिर दिया। फिर जब डेवलपर ने कोड लिखा, टेस्टिंग टीम को दिया, अगर वो कोड सही रहा तो फिर वो बिल्ड होने जाता था। बिल्ड होने के बाद क्या होता भाई, इसको इंटीग्रेट किया जाता था, आई मीन कि एक फेज में डाला जाता था। ठीक है, कि भाई हमारा इंटीग्रेट हो। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद क्या होता था कि भाई हमारा ये डिप्लॉय होता था। ठीक है, अब जो भी हमारे सर्वर बने हों। ठीक है, ये हमारे फेज चलते थे। इन फेज को कंप्लीट करने में हमें 1 साल लग जाते थे, 1 साल से ऊपर लग जाते थे। अभी मैं आपको पुरानी कंपनी का अपना बता रहा हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था तो इसके पहले कि यहाँ पे जो मेरे मैनेजर हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आलोक तुम डेवऑप्स के लिए आए हो, रीजन क्यों है, मैं तुम्हें हायर क्यों किया हूँ, और डेवऑप्स है क्या। तो मैंने उनको सर बताया कि जो हमारी वर्क है, वर्किंग प्रोसेस है, एज ए पैरेलल करने के लिए, मतलब क्या है, डेवलपर ने कोड लिखा। ठीक है, तो भाई हम इसको पैरेलल टेस्ट कर लें। टेस्टिंग टीम हो गई तो पैरेलल बिल्ड कर लें, बिल्ड हो गई तो पैरेलल सीआई कर लें। ठीक है, तो हमारी क्या होती थी, तो बोला आलोक, तो उन्होंने एक मजाक किया। मजाक क्या किया, एक सीरियस है। उसी कंपनी में सैमसंग कंपनी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ की जो टीम है ना, डेवलपर टीम इंडिया में बैठती है और जो टेस्टिंग टीम है वो कोरियन थी। तो जो भी जो टेस्टिंग होती थी जो कोड की, वो कोरिया में होती थी। ठीक है, तो जब डेवलपर यहाँ पे वो प्रोजेक्ट
जो कोड इन्होंने लिखा था 6 महीने में लिखा था, ठीक है। 6 महीने बाद जब वो कोड गया, कोरियन टीम ने मिनट में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस वहां पे गेनिंग की क्षमता हमसे ज्यादा है, ठीक है। वो हमारे बग को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब एक बात बताओ, आपने 6 महीने रात दिन मेहनत किया और किसी बंदे ने 6 मिनट में रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगेगा? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारी डेवऑप्स टीम आई, ठीक है भाई। राकेश महताब, हाँ सर। समझ में आया क्यों आया डेवऑप्स टीम? टाइम कम लगे इसलिए। इसमें क्या होता है कि किसी क्लाइंट का, अब मान के चलो मैं IBM ने मुझे एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है कि भाई मुझे ये एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर दो, ठीक है। अब पता ये चला मेरा डेवलपर भाई 2 महीने कोड लिखने में लगा है, उसको टेस्टिंग टीम को गया, टेस्टिंग टीम ने 2 मिनट में रिजेक्ट कर दिया, फिर 2 महीने लिया, फिर 2 महीने लिया, ऐसे तो मेरा 6 महीने ऐसे ही बीत जाएगा ना। दे दो। तो अब क्या होता है, कि हम पैरेलल में ही टेस्टिंग भी करते हैं, बिल्ड भी करते हैं। अब 2 लाइन का भी कोड लिखता है, डेवलपर कमिट कर देता है, ठीक है। तो हम उसको डिप्लॉय करके लाइव पे ला देते हैं। अब मान के चलो हमने लॉगिन का एक कोड लिखा, ठीक है, लॉगिन का एक कोड लिखा। लॉगिन की कोड के लिए हमने क्या किया भाई, एक माइक्रो सर्विसेज लगाई, अब इसको मैंने क्या किया, मान लो छोटा सा कोड लिखा लॉगिन के लिए, ठीक है, डेवलपर ने। और फिर ये मान के चलो ये हमारा प्रोडक्शन सर्वर है। प्रोडक्शन सर्वर मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जो हमारा, जैसे मैं आपने google.com खोला ना, तो वो एप्लीकेशन जो गूगल है, हाँ बताइए, हाँ बोलो। प्रोडक्शन सर्वर का मतलब ये समझो मेन सर्वर है, ठीक है। मेन सर्वर है, ठीक है। अब जब यूजर, अब मान के चलो यहाँ पे विजय है, ठीक है। विजय क्या करता है, यहाँ पे facebook.com को हिट करता है अपने उस पे, तो ये जाके जो हमारा डोमेन है ये हमारे मेन सर्वर को हिट करता है और ये एपीआई कॉल करती है, तो फिर ये हमें लाके यहाँ पे एक इसको इंटरफेस देता है जिसको बोलते हैं GUI मोड, ठीक है। समझ गए ये कैसे काम कर रहा है? ये हमारा हो गया बैकएंड का एरिया, ये आपको नहीं करना, ये हमारा बैकएंड का एरिया। हाँ
क्या हुआ? ठीक है, ये हमारा मेन सर्वर है, ये हमारा facebook.com खुल के आ गया। ठीक है, किसी को डाउट कुछ पूछना है पूछिए। राकेश, मेहताब, कुणाल, विजय, पूछो भाई, क्या हुआ? जितेंद्र, हाँ कुणाल बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप? मेरा एक डाउट है एक्चुअली, ऑन प्रीमिसेस डेवऑप्स और नॉर्मल डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं AWS आपको में जो ऑन प्रीमिसेस डेवऑप्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्लाउड के पहले जो हमारे सर्वर होते थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना। हाँ हाँ, वो हमारे होते हैं ऑन प्रीमिसेस सर्वर, मतलब कि हमारी जो सीपीयू होती है ना, सीपीयू, जो हमारा लोकल सर्वर्स होता है, लोकल सर्वर, उसको बोलते हैं हम ऑन प्रीमिसेस सर्वर, सीपीयू। ठीक है, मान के चलो 1 TB का है, और ये हमारा हो गया क्लाउड। मैं अभी आपको डिफरेंट बताता हूँ। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे क्लाउड। अभी देखो दोनों में डिफरेंट क्या है। अभी मान के चलो, अभी ये जो हमारा सीपीयू है 1 TB का, ठीक है, इसमें हमारी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे 500 यूजर एक्सेस कर सकते हैं। अब मान के चलो मैं इस पे अपनी एक वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है, alok.com। इस पे हमारे 1 TB के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे 500 यूजर एक्सेस कर सकते हैं, 500 यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे यहाँ पे 1000 यूजर आ गए तो हम क्या करेंगे? फिर हम सडन क्या करेंगे भाई? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। यही होगा ना। क्लाउड क्या, हाँ, बैलेंसर का यूज करते हैं, लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया है कि भाई 500 यूजर्स यहाँ पे आए, अगर सपोज अगर हमारे 1000 यूजर आ जाते हैं सडन, तो एक काम करो, हमारी एक ऑन डिमांड सर्विस आती है, ऑन डिमांड सर्विस आती है, उसका यहाँ पे यूज करके मेरा एक न्यू सर्वर क्रिएट कर दो, न्यू सर्वर एक लॉन्च कर दो, और हमारे जितने भी यूजर्स हैं इनको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करो जो वो चाहते हैं। अगर सडन 1000 यूजर से घट के 200 यूजर आ जाते हैं तो हमारी सर्वर को हटा दो। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल का मतलब जानते हैं क्या होता है ना? लचीलापन। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे यूजर्स इंक्रीज हों तो भाई एक न्यू सर्वर लॉन्च कर दो, और अगर हमारे यूजर्स कम हो जाते हैं तो एक काम करो कि भाई हमारे सर्वर हटा दो। और देखो हमारा जो क्लाउड होता है ये किस पे काम करता है भाई? एज यूज पे, मतलब एज यूज एज पे। ठीक है, पे एज यूज मतलब बोल सकते हैं, मतलब सेंस क्या है कि भाई हम जितना यूज करें उतना हम पे करें। लेकिन ये ऑन प्रीमिसेस सर्वर में क्या होगा भाई?
ऑन प्रीमिसेस सर्वर में ये होगा, प्रीमिसेस सर्वर में ये होगा, हम यहाँ पे लिमिटेड हो जाएंगे। अगर मान के चलो ठीक है भाई, अगर हमने 1 टीबी की जगह अगर हम 5 टीबी बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होगा भाई, ये तो हम परचेज करेंगे ना। अब एक बात बताओ, अब मान के चलो साल भर में, मान लो ये जो हमारा बिग बिलियन डे है, साल भर में कितनी बार आता है फ्लिपकार्ट पे, कोई बताए? 3-4 बार आता है। 3-4 बार आता है, मतलब फेस्टिवल में आता है, मतलब फेस्टिवल में आता है, ठीक है, आता है ना फेस्टिवल में। अब एक बात बताओ, अगर मान के चलो हमारे 2-3-4 महीने फेस्टिवल ही नहीं पड़ते हैं, तो एक बात बताओ फिर वो क्या है, सर्वर हमारे लिए लेस है, उसकी कॉस्टिंग, उसका स्टोर, सब कुछ हमारा बेस्ट है। अब पता ये चलता है कि भाई हमें 2 करोड़ का प्रोजेक्ट असाइन हुआ है और हमारी कॉस्टिंग आ रही है 5 करोड़, तो भाई ये कंपनी को तो ऐसे ही लॉस हो जाएगा ना। इसलिए सारी कंपनियां क्लाउड पे मूव हो रही हैं, ठीक है, समझ गए भाई? राकेश, कुणाल, यार बोलो बोलो। सर हो चुकी हैं सर, क्या हुआ? सब तो हो ही चुकी हैं ना सर। नहीं यार, अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ। अभी मेरी एक बड़ी कंपनी है एक्चुअली, उनका एक डेटा माइग्रेट होता है, ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी, जो ऑन प्रीमिसेस सर्वर पे मैं क्लाउड पे माइग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा सर। मैं वही अभी कर रहा हूँ, ठीक है। सर आप किस कंपनी में बताए थे वर्क कर रहे हैं? यार मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बताऊंगा एक्चुअली, हम सब अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, अलाउड नहीं है, बस इतना जानो यूएस का प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, यूएस बेस पे काम करता हूँ, ठीक है। 10-12 AWS में कितना सर्विसेज चल रहा है? क्या बोल रहे AWS में टोटल कितना AWS में टोटल कितना सर्विसेज चल रहा है? यार देखो, अभी अगर करंट में मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा AWS की, ठीक है, अगर AWS में सर्विस की बात करो ना तो 200+ सर्विस हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, 200+ सर्विस हैं। और AWS की खासियत ये है, ये डेली टू डेली अपनी सर्विस को अपडेट करता है, ठीक है, अपडेट करता है ये डेली टू डेली, ठीक है। तो कुछ लिमिट नहीं है, अभी आज हमारी सर्विस 200, ये देखो अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इस पे बताता हूँ। EC2, IAM, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड फॉर्मेशन, राउट 53। अब देखो, अब अगर आप AWS की सर्विसेज की बात करोगे तो 200+ सर्विसेज हैं जो अभी हमारे यूज के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें AI भी आता है। आई होप कि यू नो अबाउट दैट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो डेटा साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। ML, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब AI पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमें, जो हमारे काम के लिए हमें उतना पढ़ना है जिसपे हमारी जॉब लग जाए। इंटरव्यू पर्पस में जितना सर्विसेज पूछते हैं उतना ही सर्विसेज थोड़ा। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू पर्पस में जितना सर्विसेज आ रहा है उतना ही सर्विसेज हमारे, ये कर दीजिए। अभी इंटरव्यू पर्पस में मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या बताएंगे, ठीक है। EC2, VPC, S3, राउट 53, RDS, लैम्डा, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, CDN, IAM, मॉनिटरिंग टूल, क्लाउड फॉर्मेशन। अभी 1-2 सर्विस हम आपको और बताएंगे, उसको मैं एड ऑन आज नाइट में करूंगा, ठीक है। अब चलो मैं डेवऑप्स पे आता हूँ। चलो, AWS में किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर। डेवऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट
प्लस ऑपरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, इसमें हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा गिट, ठीक है। एक एक चीज डिस्कस करते चलते हैं। गिट क्या है? गिट एक तरह से हमारा एक रिमोट रिपोजिटरी होता है, ठीक है। इसमें जो भी हमारा डेवलपर कमिट मतलब कोड जब लिखता है तो उसको एक स्टोरेज में रखता है, ठीक है। तो ये हमारा गिट है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आगे से चलते, बिकॉज आज डेमो सेशन है तो ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरा जो टूल है वो क्या है हमारा भाई? मावेन। ये क्या है? हमारा बिल्ड टूल है। ये क्या था भाई? रिपोजिटरी टूल्स है, ठीक है। तीसरा क्या है? एंसिबल। ये हमारा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन टूल्स है। चौथा क्या है? हमारा जेनकिंस। किसी ने नाम सुना है इन लोगों का? पांचवा क्या है? डॉकर। वन सेकंड देना जरा। DevOps. हाँ सॉरी। ऑर्केस्ट्रेशन टूल है ये आपका ऑर्केस्ट्रेशन टूल है ये। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारे 7 टूल्स हैं। हेलो, हे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपका जो AWS है ना, जो AWS है वो एक तरह से हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट लिया, AWS के प्लेटफॉर्म पे चले गए, लेकिन हमें इंतजार किसका है भाई? ट्रेन का। ट्रेन पे हमें सामान भी रखना है, हमें जाना भी है, ठीक है। तो बिना इन सब चीजों के पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि डेवऑप्स सॉरी क्लाउड प्लस डेवऑप्स आना चाहिए, ठीक है। क्लाउड प्लस डेवऑप्स आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो मैं आपको आगे बताऊंगा,
वो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा उसमें मुझे जाके, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं, कौन कौन है यहाँ पे, हाँ मुरली मेहताब, ये सब मतलब अभी कुछ बता रहा था जीसीपी वगैरह के बारे में, उन्होंने भी बहुत कुछ, आई होप कि ये लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। जो मैंने कोर्स के कंटेंट डाले हैं वो ना तो आपको बैंगलोर ना तो आपको हैदराबाद में मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या है यार कि मेरा एक ही कंसर्न है, रियल टाइम सिनेरियो पे काम करना, थ्योरी नहीं, क्योंकि यार थ्योरी तो एक बच्चा भी याद कर लेगा, और जब इंटरव्यूअर पूछता है ना तो वो रियल टाइम सिनेरियो। यार एक बात बताओ, आपको 10 लाख 15 लाख क्यों देगा? एक बात बताओ, इंटरव्यूअर आपको 10 लाख रुपए क्यों देगा? और यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे 5.8 5.10, और जो मैक्सिमम है आपको भी पता होगा 1 CR से ऊपर ही जाता है। मिनिमम कितना है सर? 5 मिनिमम to 10? 5, मिनिमम 5, अच्छा 5 से 10 के बीच में। मिनिमम, हाँ 5 और 10 के बीच है, मिनिमम 5। और एक और बात ये है कि मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि यार पढ़ने का तो फिर अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि यार पढ़ाने का मतलब ये होता है ना कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा फोकस करे, थोड़ा सा सीरियस लेगा ना, तो 3 महीने बाद वो कहीं अलग होगा, किसी अलग प्लेटफॉर्म पे होगा, ना तो वो पीछे मुड़ के देखेगा, ना ही किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला कंसर्न यही होना चाहिए, सीरियस, ठीक है। अब सीरियस होके पढ़ाई करो आप। मैं वही नौकरी की प्रोफाइल ओपन करके दिखाता कि यहाँ पे देखो कितनी ओपनिंग्स आती हैं, यहाँ पे डेली 2000 ओपनिंग आती है। आपको पता है कि अभी आईटी में रिसेशन चल रहा है, लेकिन अभी हाँ भी जो सुनने को आया था बहुत सारे लोगों हाँ, को हायर कर लिया, तो इस साल थोड़ा कम आ रहा है वैकेंसी। अरे लेकिन अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वही मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है, कि अभी भी डेली 2000 ओपनिंग्स निकलती है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पे विदाउट डेवऑप्स इंजीनियर का काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। अब देखो, डेटा साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, डेटा साइंटिस्ट भी क्लाउड पे मूव कर रही है। आने वाले 10 साल 15 साल में हर एक चीज क्लाउड पे मूव कर जाएगा, और 1-2 साल में, ज्यादा नहीं, 1-2 साल में क्लाउड में इतना बूम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बात बताओ, टेलीकॉम में आरएफ का जो बंदा था वो प्रोटोकॉल टेस्टिंग में चला गया। मेरे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो एमडॉक्स में है, आपका एचसीएल में है, आईबीएम में है, वो मेरे को फोन करता है यार क्लाउड का ये बता दे वो बता दे। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कह रहे यार ये सब तो क्लाउड पे ही मूव कर रहे हैं। आप समझ लो कि क्लाउड क्यों इतना वो है। अब वही डिफरेंट है ऑन प्रीमिसेस और क्लाउड में, क्योंकि भाई एक बात बताओ, आईबीएम क्यों चाहता तो अपना ऑन प्रीमिसेस तो खोल ही लेता, लेकिन वो क्यों चाहता है कि भाई हमारी कॉस्टिंग प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी ये मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। इसको ये मेंटेन करता है, और हर साल, अभी इस साल आप लोग ये समझो 30 लाख बच्चों के पीछे हो, क्योंकि वो 30 लाख बच्चे जैसे आते हैं तुरंत निकल लेते हैं कहीं ना कहीं किसी तैयारी में, या तो उनका कैंपस हो जाता है, वो हायर हो जाते हैं। मतलब कि हर साल आप 30 लाख 40 लाख बच्चे, आपको भी पता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग कितनी है, हर साल 40 लाख इंजीनियर निकलते हैं।
तो कितना पीछे हो रहे हो। मैं अपने ग्रुप का पहला ऐसा बंदा हूं जो इंडिया में हूं। मोस्टली मेरी जो फ्रेंड सर्किल में यूएस में है, वो फैमिली सेटल है वहां पे, वो लोग वहीं पे रहते हैं। क्योंकि बहुत का कैंपस हुआ, मेरा कैंपस हुआ तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कि भाई ये होगा कि नहीं। लेकिन ये है ऑन डिमांडिंग, जैसे आपकी, देखो यार आईटी में आने का मतलब है ना डेली अपडेट होना, ठीक है, तो वैसा होना जरूरी है, नहीं तो उसके बाद पछताना पड़ता है। चलो ये तो रही बात की बात। अब बताओ मुरली, राहुल, राकेश, धीरज, कुणाल, विजय, बताओ कुछ डाउट हो तो बताओ, पूछो। अब डाउट पे बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, इस पे क्या आपके नेक्स्ट लेवल होंगे उस पे बात करेंगे, बताइए। महताब आपसे शुरू करते हैं। सर बेसिकली अभी इन डिमांड तो डेवऑप्स चल ही रहा है, इसीलिए हम करना चाह रहे थे कोर्स। और बाकी अभी डिमांड इसका अच्छा है और क्या सैलरी हुआ? भी अच्छा है इसमें। वो तो है, सैलरी यार देखो कभी भी ना सैलरी के पीछे नहीं भागते हैं। सैलरी के पीछे वो भागता है जो जल्दी से ये सोचता है अरे यार ये जल्दी से कमा के रख लूं। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो कंपनी आपकी 5 गुना देगी सैलरी, आप जितना मांगेंगे ना 5 गुना देगी सैलरी। अगर आप बोलोगे मुझे सर 20 लाख चाहिए, वो बोलेगा नहीं मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ सर पूछिए। अभी जितना भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुआ है, चाहे अच्छा मैंने पैकेज, या तो HDE लेवल का बंदा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, या HWE सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे अगर प्रोडक्ट बेस में है, या फिर डाटा इंजीनियर या फिर डेवऑप्स है, ये सब थोड़ा हाई डिमांड करियर विथ अच्छा सैलरी अभी है। नहीं नहीं मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन क्या है। सर मैंने इन डिमांड अच्छा पैकेज इसमें है ना सर डेवऑप्स में, यार जैसे कि देखो और कोई फील्ड है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं डेवऑप्स में मैं। बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा ना तो हो सके तो आपको कहीं डाउट हो आप खुद गूगल करो, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है उससे ये बोलो कि, अगर कोई डेवलपर है उससे ये बोलो कि भाई मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूं, बस इतना बोलना। और ये मत बोलना कि मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो जानते हो क्या बोलेगा वो, तुमको डिमोलाइज करते हैं। क्योंकि जानते हो क्या है कि डेवलपर ये चाहता है, क्योंकि डेवलपर ये चाहता है ना भाई कि मैं खुद इस कोर्स को सीखूं। तो यार आजकल की बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना, अगर ये बोलोगे मैं करता हूँ, अगर ये बोलो ना मैं पहले ये बोलना कि डेवऑप्स इंजीनियर, उसके बाद बोलेगा अरे साला तो सैलरी तुम्हारी अच्छी होगी। क्योंकि यार डेवऑप्स अगर ना हो तो कंपनी ही ना है, बस इतना जानो। और सर एक डाउट्स था, जैसे कि और सब फील्ड है, जैसे जावा डेवलपर हो गया, डाटा साइंटिस्ट हो गया, तो जैसे डाटा साइंटिस्ट में एंट्री लेना है तो अगर कोई वर्क सीख रहा है तो एज ए डाटा एनालिस्ट वो जाता है। इसमें सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर अगर बहुतों लोग से मैं सुना हूँ कि इसमें प्रायर आपका कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं होता है। है। अब मेरी बात सुनो, चलो मेरी स्क्रीन शेयर है ना अभी, हाँ सर। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। हाँ ये क्लियर करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी देखो क्या होता है कि ये जैसे डेवलपर है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। ये डेवलपर है, इसने क्या क्या कोड कमिट किया तुम्हारा गिटहब में, ठीक है, ये तुम्हारा गिटहब है, ठीक है। अभी मैं आपको, अभी देखिए मैंने जो डेवऑप्स का टूल बताया ना उसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गिटहब में किया, यहाँ पे डेवऑप्स की एक्टिविटी शुरू हो जाती है।
यहाँ पे डेवऑप्स की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, डेवऑप्स क्या करता है भाई, इस कोड को पुल करता है। यहाँ पे क्या क्या बिल्ड किया, जो हम टूल का यूज कर रहे हैं वो टूल कौन सा है भाई, मावेन। फिर क्या किया भाई बंदे ने, यहाँ पे उसने बंदे ने क्या किया, बिल्ड किया। उसके बाद उसने क्या किया भाई, हमने डॉकर का यूज करके उस प्रोजेक्ट का एक इमेज बना लिया। ठीक है, यूजिंग डॉकर। इमेज क्रिएट कर लिया। उस इमेज को हमने क्या किया, उस इमेज को रन किया। रन करने के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे जेनकिंस का प्रोसेस आता है। जेनकिंस का प्रोसेस आता है। ठीक है, और फिर एक हमारा इस जेनकिंस सर्वर से हमारा एक वेब सर्वर कनेक्टेड होता है। वेब सर्वर का नाम सुना है आपने? वेब सर्वर। Yes. अपाचे का नाम सुना है? अपाचे का? हाँ सर, अरे वाह, बहुत Yes. अपाचे वेब सर्वर है। अरे वाह रे। अपाचे, ठीक है, या तो एनजिनिक्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या किया भाई, डेवलपर ने क्या किया भाई, कोड को कमिट कर दिया, पुश कर दिया, धक्का दे दिया, ये कोड आ गया गिटहब में। यहाँ पे डेवऑप्स क्या करता है भाई कि पुल अब आपने क्या पूछा था, क्वेश्चन याद है? सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी आपने क्या क्वेश्चन अराइज किया था? प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कोडिंग में। हाँ, अभी आपने जो बोला वो क्या होता है। अब देखो, जब ये बिल्ड होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कोड है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एरर आता है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो नॉलेज क्यों जरूरी है कि भैया आप एरर पकड़ो। कि अब एक बात बताओ, आपको ये मान लो कि चलो कि इसने क्या, डेवलपर ने भैया जावा में प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, जावा में प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब भाई जरूरी थोड़ी है, अब जैसे मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा नहीं आता, तो मैं डेवलपर को क्या बोलता हूँ, यहाँ पे जब एरर आता है ना, तो मैं बोलता हूँ कुणाल कनेक्ट करते हैं और इस एरर को डिबग करते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये देखो, ये डेवलपर की प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बोलता है यार ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर कुणाल ये बोलता है कि नहीं आलोक भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम क्या चेक करते हैं, भैया हमारा ये जो बिल्ड टूल है मावेन, इसको हमारा सही चल रहा है ना, डॉकर जो है ये सही चल रहा है ना, जेनकिंस जो है ये सही चल रहा है ना, वेब सर्वर सही चल रहा है ना। हम इतना चेक करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपका पैकेज, यहाँ पे अब मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ, अगर आपका पैकेज यहाँ पे 10 है, अगर आप सफर करना चाहते हैं 20 का, ठीक है, तो आप डेवलपर प्लस जेनकिंस प्लस ये सब घूम लीजिए, आप मास्टर बन जाइए। लेकिन एक बात बताइए यार, देखो, हम तो डेटा साइंटिस्ट भी कर लें, हम तो डेवलपर भी बन जाएं, हम तो एआई भी बन जाएं,
हम तो मैनेजर भी बन जाएं, ठीक है, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और जहां तक कोडिंग की बात है, वो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो मैं आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि आप भी बोलोगे वाह, ठीक है। तो यह पाइथन यूज होगा ज्यादा? क्या हुआ? यहाँ कौन सा लैंग्वेज यूज होगा सर? यार यहाँ पे कोई लैंग्वेज यूज नहीं होगा, कोई लैंग्वेज यूज नहीं होगा, यहाँ पे कोई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करेंगे तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, मतलब कि अगर आप ये लिखोगे ना, अगर आप ये लिखोगे ऐसे कि भाई होस्ट 198.168.0.1 वेब अब HTTPD SRC where, ये सब मैं समझाऊंगा where। अच्छा सर, बेसिकली यानी यहाँ पे आपका क्या बोले, बेसिक कमांड्स होगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा लिख लूं, मैं आपको समझा रहा हूँ। where www. इसमें जाओ, OPT में जाओ, भाई यहाँ पे हमारा एक कुणाल नाम का फाइल पड़ा है, ठीक है, उसको क्या करो, DEST डेस्टिनेशन में हमारा क्या करो, OPT में करो, मूव कर दो एंड कुणाल को रिप्लेस करके इसमें आलोक में डाल दो, ठीक है। अब ये बताओ भाई इसमें कोडिंग क्या है, जरा मुझे बताओ। ये हमने क्या कर दिया भाई, ये हमने सर्वर की IP दे दी, ये हम बता दिए भैया हमारा वेब सर्वर कौन सा है, अपाचे है, ये हमारा सोर्स है भैया, हमको जो फाइल उठानी है कौन सी उठानी है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। इसमें बताओ, ये बताओ कोडिंग का है। हाँ सर, ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया, बेसिक है, इसको ठीक है। बिल्कुल मैं कुणाल, बिल्कुल मतलब कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। नहीं आता नहीं आता, कोई एक बात बताओ, सब हम ही जान जाएंगे तो डेवलपर भाई क्या करेगा, डेवलपर की जॉब नहीं छीन जाएगी है? और भाई अगर हमें डेवलपिंग आता आएगा तो हम 10 लाख क्यों लेंगे भाई, हम तो 25 लाख लेंगे, और कंपनी देगी भी, देती भी है हमें, क्योंकि हमें पाइथन आता है। मैंने भी जब एंट्री किया था तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं बाद में ये सोचा कि यार थोड़ा सा सीख लूंगा, तो क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट प्लान है डेटा साइंटिस्ट में जाने का, ठीक है, तो मुझे पाइथन सीखना है, तो मैंने पाइथन सीखी, ठीक है। तो बेसिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सब आए, ठीक है, आपको बस बेसिक आना चाहिए। अमित, अमित, यस सर। थोड़ा लाउडली बोलो यार। यार मैंने बस इसमें 2 लोगों की आवाज सुनी, राकेश और कुणाल की। ये अमित गायब है, धीरज, मुरली, राहुल, ये लोग कहाँ हैं? अमित बोलो, बताओ, क्या कुछ आपको डाउट है? नहीं नहीं, सारी क्लियर है। नहीं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। क्या मतलब अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अभी तक समझ में आया आपको, मुझे बताओगे आप कुछ? अभी तक आपने जो भी बताया सब समझ में आ गया, आप उसमें से पूछ लीजिए। अच्छा, डेवऑप्स क्यों आया? डेवऑप्स जो है, दिस इज जस्ट ब्रिजिंग बिटवीन डेवलपर एंड टेस्टिंग टीम। Testing team means for testing the script which is developed by the developer. देखो, ये एक तरह का वर्क फ्लो है जिसको हम बोलते हैं मेथोलॉजी। पहले क्या होता था, पहले हम एजाइल मेथोलॉजी में काम करते थे, ठीक है, एजाइल मेथोलॉजी में काम करते थे। अब हम जो काम करते हैं, ये शायद पहले जो था वी वर डूइंग इन वाटरफॉल, अब जो है शायद स्क्रम पे, नहीं राइट?
स्क्रम दूसरी चीज हो गया। स्क्रम इन द सेंस क्या हुआ कि स्क्रम मीटिंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि भाई हमें वो सब मैं आपको बताऊंगा मतलब ठीक है। इसमें भी तो सेम ही कर रहा है ना, मीन्स डेवलपिंग किया देन भी स्प्रिंट्स जो दिया मतलब टेस्टिंग के लिए, अगर वो पास हो गया देन फिर फर्दर हम आगे प्रोसीड किए। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था ना कि डेवलपर केवल कोड ही लिखता था 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ठीक है। अभी क्या है, हर बंदा मतलब कि 10 बंदे एक साथ काम करना चाहते हैं, 100 बंदे डेवलपर हैं, एक साथ काम करें, अपने कोड को पुश कर दें अपने ब्रांच में। मतलब कि समझो कि एक, अब मान के चलो तुम्हारा अलग घर है, मेरा अलग घर है, मेहताब का अलग घर है, धीरज का अलग घर है, ब्रजेश का अलग घर है, राहुल का अलग घर है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई कि हमने उनको ये किया कि हम एक वर्चुअल पे भी कनेक्टेड है ना एक साथ। यस सर, यही काम है। मेहताब, राहुल, राकेश, धीरज, मुरली आप कुछ बोलना चाहते हो, बताइए। आपने अभी एक वीडियो कॉल किया था, अपना वीडियो ऑन किया था, ऑफिस में बैठे हो लग रहा है। मुरली, अरे मौली है भाई, सॉरी मुरली मौली। हाँ ब्रजेश सर। अच्छा सर, ये पूछ रहा था, ये कितने मंथ का कोर्स होगा और कितने आवर्स के? यार देखो, अमाउंट वगैरह की बातें तो एचआर जानते हैं, ठीक है। मेरा बस इस कोचिंग से जुड़ने का मतलब ये है कि मुझे एटलीस्ट जितने भी बंदे नीडी हैं, ठीक है, उनको जॉब कराना। सर ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ, कितना मैंने टाइम चलेगा हाँ कोर्स? टाइम 3 मंथ का है, 3 मंथ का। 3 मंथ्स। और डेली कितने आवर्स, 1 की 2? यार एक्चुअली क्या है, मैं भी अभी जॉब करता हूँ तो मैं डेली नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्लान बना रहा हूँ कि ऑफिस के बाद मैं करूँ, ठीक है। अभी क्या है, मेरे और 2-3 चलते हैं, ठीक है, क्लासेस। तो इसमें भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि मेरे अभी 5 बच्चे प्लेस हुए, तो उनकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। तो और भी मेरी क्लासेस ऑर्गेनाइज हो गई हैं, ठीक है। और यार मैं आपको एक और बात बता दूं, एक होता है ना, लोग बोलते हैं डंके की चोट पे, अगर डंके की चोट पे मेरे अकॉर्डिंग चले, ठीक है, डंके की चोट पे 100% जॉब लगेगी, ठीक है। सर खुद से सर या ऑफिस प्रिफर करेंगे सर? क्या हुआ सर ये बोल रहा हूँ सर, मैं अपने खुद से होगा सर या आप प्रिफर करेंगे, मतलब आप करा देंगे? अरे मैं सब करूंगा, बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी चाहिए। जितना मेहनत मैं करूंगा उसके 2 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा। हाय मौली। सर मतलब अभी तक कोई मतलब नहीं है सर, मतलब सॉरी क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर कि टेक्निकल। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? हाँ आ रही है अभी। सर अभी तक टेक्निकल क्लास किया नहीं आज तक कॉलेज। यार मैं आपको पता है, मैं टेक्निकल कुछ लैंग्वेज भी यूज नहीं किया अभी तक। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे करना है। बस यार यही है, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना 100% दें, ठीक है जी सर। अच्छा व्हाट्स योर गुड नेम? राकेश बोल रहा हूँ ना? यस सर। राकेश, मैं आपको एक गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे भीड़ नहीं जुटाना है।
हेलो हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ श्योर श्योर। धीरज धीरज बोल रहे हो ना? धीरज। हाँ बताइए बताइए। सर ये मतलब मुझे ये पूछना है कि मेरा अभी जो है तो आईटी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और अभी टेलीकॉम सेक्टर में जॉब चालू है। अगर मैंने समझो ये डेवऑप्स का कोर्स है तो वो कर भी लिया, तो मतलब जॉब कैसे मिल पाएगी? क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि आईटी में एक्सपीरियंस ही चाहिए, ऐसा होता है। हम सब कराएंगे, आप उसकी चिंता ना कीजिए। हम जैसा बोलेंगे बस आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है? और रही बात, आप कब के पास आउट हैं? 16। आप रजय सर से बात कर लेना, वो सब वो कर देंगे, ठीक है? ओके। करने का था गैप ईयर मैटर नहीं। क्या हुआ? अच्छा लैब्स का क्या सीन है, मतलब जैसे प्रैक्टिकल वगैरह कैसे करेंगे आप? मैं आपको सब ऑनलाइन कराऊंगा। आपके पास लैपटॉप है ना? नहीं, लेकिन जैसे लाइव पूछते हैं कि लाइव मैं या लाइव टेस्ट नहीं केसेस कराऊंगा लेने भाई। के लिए ये देखो ना, नहीं, ये नहीं, मेरा टेस्ट अकाउंट है, केसेस। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? कि ये मेरा ऊटी है, ये सब लाइव है, ये सब लाइव है, ठीक है? ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लाइव है ये सब। तो इस पे टेस्ट केसेस भी रह जाएंगे, मतलब कि जैसे कोई भी सिनेरियो केसेस अगर देते हैं तो वो भी कैन परफॉर्म हियर, राइट सर? मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको 5 प्रोजेक्ट कराऊंगा। उस 5 प्रोजेक्ट में अगर आप पहला इंटरव्यू देना, उस दिन आप बोलना कि आलोक सर, इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा था, आपने तो ये बताया ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप बोलना अगर मैं गलत हूं तो। क्योंकि यार मैंने अपनी पूरी 12+ ईयर की जर्नी में 500+ इंटरव्यू दिए हैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी सर, वो ऑफिस में था इसलिए बोल नहीं पाया। क्या हुआ? ऑफिस में था इसलिए बोल नहीं पाया। हाँ 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 मतलब बताओ। लैब में था। हाँ हाँ बताओ बताओ बोलिए। हाँ जी सर, ये आपका चालू कब होने वाला है ये बैच? ये अभी आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके। और सर फीस कितने रहेगी? ये एचआर से डिस्कस करें, क्योंकि मैं तो बस पढ़ाता हूँ, मुझे ये नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके ओके। 3 मंथ्स का रहेगा ना कोर्स? हाँ 3 मंथ्स का रहेगा, लेकिन ज्यादा वो करोगे, मतलब कि आई मीन कि ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो हम कोशिश ये करेंगे जितनी जल्दी हो सके कवर करें। तो इसमें AWS प्लस DevOps रहेगा, राइट? AWS प्लस DevOps प्लस Linux, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रहेगा। जी सर। एप्लीकेशन कितने रहेंगे सर? इसको चाहेंगे तो Azure पे जा सकते हैं, राइट? अरे मैं Azure भी बताऊंगा, GCP भी बताऊंगा, Azure भी बताऊंगा, GCP भी बताऊंगा। तो सर सब अलग अलग है? हाँ ये 3 क्लाउड है, ये सब अलग अलग है। मैडम नहीं है। क्या हुआ? हाँ बोलो मौली, क्या बोल रहे हो आप? सर एप्लीकेशन कितने रहेंगे आप इसमें, ये कोर्स में? एप्लीकेशन? हाँ मतलब वो गिट, एंसिबल, ये टूल है, ये 7 टूल, 7 टूल हम पढ़ाएंगे। आप गूगल ऑनलाइन किसी भी कोचिंग में देख लेना, ठीक है? किसी भी कोचिंग में जानना चाह रहे थे। हाँ बताइए। आपसे जानना चाह रहे थे एक चीज की, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं बोलो। है ना जी। ये कह रहा था कि जैसे सिंपली लर्न एंड ग्रेट क्लाउड्स वगैरह, ये सारे भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि देते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं पीजी का कोर्सेज देता हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज देता हूँ, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं। तो वो क्या है, मतलब उससे और अपना जो होगा उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? एक बात जानते हो, इसमें बहुत सारे फीचर्स, मेरे पास मेल भी आया था, उसमें बहुत सारे बता रहे थे कि इसमें ये लैब कराएंगे, वो कराएंगे, फिर स्कॉलरशिप देंगे, बहुत सारी चीजें थी। बट उसमें बोल रहे थे कि मैं सारी चीजें कवर भी करूंगा, और लैब्स बता रहे थे। तो मतलब वही जानना चाह रहे थे कि अपना डिफरेंस कहाँ रहेगा, कि ऐसा नहीं हो कि कहीं हम लोग भी पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी यस। देखो मैंने भी आप ही की तरह पढ़ाई की है, ठीक है? जब मेरी शुरुआत की थी तो मैंने भी पढ़ाई की है। जानते हो, मुझे 1 साल तक जॉब नहीं मिली,
मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझसे लिए गए थे उस टाइम 70,000 रुपये, 70,000 रुपये मैंने दिए थे कि मैं लैब कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या निकला कि केवल थ्योरी पढ़ाते हैं और एक छोटा सा एप्लीकेशन डिप्लॉय करके मुझे दिखा देते हैं। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यार मुझे ऐसा नहीं करना। मैंने आपको धीरज, राकेश, मैंने आपको एक बात बोला था कि पहला जब इंटरव्यू देना ना, तो अगर ऐसा लगे कि आलोक सर ने ये नहीं बताया था, तो भाई आप जो मन करे वो बोलना और बताओ, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जब आप इंटरव्यू फेस करो ना, तो आपके पास ये कहने के लिए ना हो कि आलोक सर ने ये ना बताया, और ये ना हो कि आप उसका जवाब ना दो, ठीक है। यार 12 साल का एक्सपीरियंस, 500 प्लस इंटरव्यू, और अभी तक 150 से 200 ऐसे बंदे हैं जो प्लेस्ड हैं, ये रिकॉर्ड रहा है। और मैं उन्हीं बंदों को बोलता हूं करने के लिए जो खुद से प्रिपेयर रहें और करें, क्योंकि यार देखो, मेरा पढ़ाना ही काम नहीं है, मुझे रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना चाहिए, समझ रहे हो आप। क्योंकि यार वो कब होगा, जब आप खुद के लिए मेहनत करोगे तब होगा। ठीक है। और सर से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि आप जो 3 महीना जो पढ़ाएंगे उसका ऐसे आपका इंटर्न टाइप का आप शो कर दीजिएगा कि हम लोग 3 महीना या 6 महीना इंटर्नशिप टाइप का आप प्रोवाइड कराइएगा। मतलब आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस आपने वो जो फॉर्म फिलअप किया था ना, हाँ सर, आप उसमें बस अपना डिटेल दे दें, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पहली जॉब तक है, आपकी पहला ऑफर लेटर आपके हाथ में, मिठाई का डब्बा मेरे ऑफिस में, ठीक है। ठीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यार देखो, एक आईटी एक ऐसी फील्ड है ना कि यार मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी तो यही लगती है सर, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। हाँ सर, मतलब अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई कंपनी वाले मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तू तो मेरा इंटरव्यू ले ले, वो आप